کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب یونیورسٹی ایک مرتبہ پھر میدان جنگ بن گئی۔ رات گئے یونیورسٹی میں ڈنڈا بردار گھومتے پھرتے رہے۔ 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں متعدد طلبہ بھی زخمی ہوئے۔ طلبہ گروپوں میں تصادم کا واقعہ یونیورسٹی ہاسٹلز میں پیش آیا۔ تصادم سے قبل ڈنڈا بردار گنڈے ہاسٹلز کے کمروں کو چیک بھی کرتے رہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی فضا میں ڈر اور خوف، طلبہ کمروں میں محصور۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ تصادم میں ملوث عناصر کے خلاف حکمت عملی طے کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ جی مبین، اس بارے آگاہ کیجیے گا، کیا حالات ہیں؟ بالکل، ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی انسیڈنٹ پنجاب یونیورسٹی میں پیش آیا ہو۔ متعدد مرتبہ جو ہے گولیاں چلنے تک کے واقعات پنجاب یونیورسٹی میں رپورٹ کیے جاتے ہیں، لیکن تمام انسیڈنٹس کے باوجود بھی کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں سامنے لائی جاتی، نہ پولیس کی طرف سے نہ متعلقہ انتظامیہ کی طرف سے۔ اسی طرح سے جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں ایک مرتبہ پھر سے تصادم کا واقعہ سامنے آیا، جس میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک مرتبہ پھر میدان جنگ بنا دیا گیا اس کو، اور رات کی یونیورسٹی میں جو ہے ڈنڈا بردار جو گنڈے ہیں یا طلبہ کہہ رہے ہیں تنظیم کے ممبرس کے لیے وہ گھومتے رہے ہیں، اور 2 گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں متعدد طلبہ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے، اور طلبہ گروپوں میں تصادم کا واقعہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور اس کے باعث جو ہے وہ ہاسٹل کے اندر کافی خوف و ہراس بھی پھیل جاتے ہوئے طلبہ تھے وہ اپنے کمروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور تصادم سے قبل بھی ڈنڈا بردار گنڈے جو ہیں وہ ہاسٹل سے کمروں کو جو ہے وہ بارہا وہ چیک کرتے رہے، لیکن طلبہ کا یہی کہنا ہے، طلبہ کا یہی بار بار ہمیں دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ متعدد مطلب اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن پولیس اور انتظامیہ تصادم میں ملوث عناصر کے خلاف واضح حکمت عملی طے کرنے میں پراپرلی ناکام نظر آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبین حیدر۔ اب آپ کو بتائیں برائلر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، فی کلو گوشت 22 روپے مہنگا ہو گیا۔ مرغی کا گوشت 504 روپے سے 526 روپے فی کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے بھی مزید مہنگے کر دیے گئے، 1 روپے اضافے سے فی درجن انڈوں کی قیمت 320 روپے ہو گئی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا، پہلے تو برائلر قیمت میں کمی آتی ایک دم، پھر اتنا کیوں ہو گیا ہے؟ آج بالکل ایک بار پھر جو ہے برائلر کی سپلائی جو ہے متاثر کر دی گئی ہے۔ مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر کی قیمتوں میں غیر معمولی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا، 22 روپے فی کلو تک کا یہ اضافہ ہے، جس کے بعد مرغی کا گوشت 504 روپے سے مہنگا کر کے 526 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ زندہ برائلر کے نرخوں میں 15 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری ریلیز کے مطابق فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 335، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو ہے 349 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں جو سپلائی ریٹ ہے وہ 349 کے برعکس 360 سے 370 روپے فی کلو تک وصول کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 363 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ انڈوں کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا اور روزانہ کی بنیاد پر یہ اضافہ جاری ہے۔ آج مزید 1 روپے اضافے کے بعد 320 روپے فی درجن فارمی انڈے جو ہے مقرر کیے گئے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9480 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ بات کریں کچھ موسم کی تو آپ کو بتائیں اسموگ نے شہر کو بری طرح نرغے میں لے لیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 600 تک پہنچ گیا۔ اسموگ کی شدت سے شہر کی فضا زہر آلود ہوگی۔ شہری نزلہ، زکام، بخار اور سانس کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے، تو دوسری جانب محکمہ موسمیات نے بارش کے برسنے تک حالات ایسے ہی رہنے کا اندیا دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے۔ جی مبین، موسم کے بارے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، شہر کے موسم کی صورتحال ہے۔ موسم میں تو جو ہے کافی ٹھنڈک کا احساس نمایاں ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ انکریز ہو چکا ہے۔ اس ٹائم شہر لاہور کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس وہ تقریباً 600 پلس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ نہایت ہی مضر صحت قرار دیا جا رہا ہے، جس کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی بیماریوں کا بھی باعث بن رہا ہے۔ اس میں جو سر فہرست ہے وہ سانس کی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، بخار ہے، خانسی ہے، اور اس طرح کی بیماریاں ہیں جو کہ بہت زیادہ جنم لیتی جا رہی ہیں اسموگ کے ہائر لیولز کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں کہ پریکاشنری میئرز کو لازمی ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ بڑھتی اسموگ جو ہے یہ پھیپھڑوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس سے خاص طور پر جو کینسر ہے پھیپھڑوں کا وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، چشمے کا استعمال یقینی بنائیں جب ٹریول کرتے ہیں۔ پریکاشنری میئرز پر لازمی عمل پیرا ہو اور کوشش کریں کہ ملحوظ خاطر لازمی رکھیں جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہے۔ اگر بات کریں اوور آل موسم کی، تو موسم میں یہ صورتحال ہے کہ رات کے اوقات میں اچھی خاصی ٹھنڈک محسوس کی جا سکتی ہے، کیونکہ دوپہر کے اوقات میں
जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो नुमाया रहती है। और यही मौसम की सूरत हाल जब तक बारिश नहीं हो जाती, यही मौसम की सूरत हाल इसी तरह से कंसिस्टेंट रहने की जो है वो प्रिकॉशनरी जो है प्रिडिक्शन की गई है। तो शहरियों को चाहिए कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेयर्स में अमल पैरा हो ताकि किसी किस्म के नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो खुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब खबर शामिल करें, लाहौर के बासियों के लिए स्मोक बन गई रोग। शहर के स्मोक की औसत शरह 160 रिकॉर्ड, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड से मराते वाली रोड के इलाके का AQI 163 तक जा पहुंचा। कई रोज तक आलूदगी की बदतरीन शिद्दत बरकरार रहने के बाद लाहौर की सूरत हाल में कदरे बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 की सतह तक नीचे आ गया, जो चंद रोज पहले तक 700 की सतह से भी तजावुज कर गया था। इस सूरत हाल के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन अब सूरत हाल में बेहतरी देखने में आई है। आलूदगी के एतबार से नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा, जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर में सबसे ज्यादा 242 एयर क्वालिटी इंडेक्स शिमला पहाड़ी के मुल्हिका इलाकों में रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी ऐसे इलाकों में शामिल है जहां ग्रीन लॉकडाउन भी नाफिज है। डिफेंस फेज 8 में AQI 239 और गुलबर्ग में 214 रहा। सूरत हाल के पेश नजर तिब्बी माहिरीन की तरफ से शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दिया गया है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। और अब खबर शामिल करें, स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का इंतिया दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता बरस जुम्मा और हफ्ते को स्कूलों की बंदिश और मार्केटों के औकातकार तब्दील किए गए थे। इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां मुकम्मल बंद की गई थीं। हमें दोबारा ऐसे इकदामात की तरफ जाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत की। मुख्तलिफ महकमों ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर बड़ा शहर है, धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अदालत ने हुकूमत के ग्रीन लॉकडाउन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि इससे एक इलाके की आलूदगी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता बरस हमने हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्राम होम और जुमा हफ्ता स्कूलों की बंदिश के अलावा मार्केटों के औकात कार तब्दील किए थे, जबकि इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर बंद की थीं। हमें दोबारा ऐसे इक़दामात की तरफ जाना होगा। दौरान समाअत LDA के वकील ने बताया कि लाहौर के 19 अंडरपासिस से LED लाइट्स चोरी हुई। अब PHA को अंडरपासिस की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक आफत करार। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए। PTMA ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। स्मोक फिर से रोग बन गई। पंजाब के 36 डिप्टी कमिश्नर्स को जरूरी और हंगामी इकदामात उठाने के अहकामात जारी। PDMA ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद स्मोक के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी होगी। सॉल्ट वेस्ट, कूड़ा क्रिकेट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी होगी। गैर मयारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी आए। ट्रैफिक में रुकावट का बायस बनने वाली पार्किंग का खात्मा किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पानी के बगैर स्टोन क्रशर्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। इमिशन कंट्रोल सिस्टम के तहत सनती यूनिट्स चलाने पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर्स सड़कों से तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए इब्तदाई तौर पर एक इलाके में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू किया गया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इंतजामिया इंसदाद स्मोक के हवाले से मुतहरिक। शिमला पहाड़ी अतराफ में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है। स्मोक हॉटस्पॉट एरिया शिमला पहाड़ी में डिसइंफेक्टेड वाटर से छिड़काव। सीनियर सूबाई वजीर की स्मोक कंट्रोल के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। लाहौर में स्मोक और ग्रीन लॉकडाउन जारी। एबट रोड, गुलिस्तान चौक, हाजी कैंप, एम्परस रोड और मुल्हिका इलाकों में पानी के छिड़काव के जरिए सड़कों को डिसइंफेक्ट किया गया। हाजी कैंप और एम्परस रोड पर तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी किया गया। 200 रेडियां तहवील में लेकर आरती शेड्स गिरा दिए गए। EPL लैब टीम की एम्परस रोड पर दफातर के पावर जनरेटर्स की मॉनिटरिंग जारी है। स्क्वाड्स ने शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर कूड़े को लगी आग को बुझाया। 3 FIR दर्ज कराई गई। शिमला पहाड़ी ग्रीन रिंग में ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को बंद करा दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मुतलका अदारों को स्मोक कंट्रोल और ग्रीन लॉकडाउन पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादर, लाहौर न्यूज़।
शहर की फजा आलूदा करने में वासा के डिस्पोजल और लिफ्ट स्टेशन पेश हैं। ड्रेनों से निकलने वाले बदबू से माहौल ताफुन ज़्यादा होने लगा। वासा का ड्रेनों और डिस्पोजल स्टेशन पर दरख्त लगाने का प्लान अमर दरामद का मुंतजर। डिस्पोजल स्टेशन के पानी से इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के वासा के ऐलानात दावों तक महदूद हैं। डिस्पोजल स्टेशन, लिफ्ट स्टेशन और ड्रेनों से निकलने वाली बदबू से माहौल ताफुन ज़्यादा हो रहा है। वासा ने ड्रेनों और डिस्पोजल स्टेशंस पर 1 लाख दरख्त लगाने का प्लान बना लिया। वासा के 9000 मुलाजमीन और अफसरान को फी कस 10 दरख्त लगाने का हुक्म दिया गया, मगर 1 साल बाद भी दरख्त न लग सके। ड्रेन पर शाहपुर कांजरा से इन्फेंट्री रोड तक दरख्त न लग सके। अब पर छोटा रावी ड्रेन और शालीमार स्केप चैनल पर शजरकारी का मंसूबा तातुल का शिकार है। सतुकतला और बहार शाह ड्रेन भी माहौलियाती आलूदगी फैलाने में सरे फहरिस्त हैं। वासा को अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत मेवाकी जंगल लगाने का भी टास्क दिया गया। वासा इंतजामिया 3 बरसों से कोई मेवाकी जंगल न लगा सके। वासा ने डिस्पोजल स्टेशन पर दरख्त लगाने को पसे पुश्त डाल दिया। डिस्पोजल स्टेशन पर 1 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया गया था। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कमल लियाकत का कहना है पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए ऐलान जंग कर चुकी है। स्मोक के खिलाफ जंग में अहले लाहौर हमारा साथ दे। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात का शहर के ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा। कमल लियाकत ने लोगों से डोर टू डोर मुलाकात की और स्मोक से निपटने के लिए वज़ीर आला पंजाब का पैगाम पहुंचाया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने इंसदाद स्मोक के हवाले से शहरियों के किरदार और मास्क के इस्तेमाल की अहमियत पर रोशनी डाली। कमल लियाकत ने प्रेस क्लब के बाहर स्टूडेंट्स के हमरा स्मोक आगाही वॉक में भी हिस्सा लिया। फजाई आलूदगी बरकरार। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी बीमार। अस्पतालों में खुश खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। 24 घंटे में सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात देखिए मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। फजाई आलूदगी रोग बन गई। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। अस्पतालों में खुश खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश खांसी की शिकायत सामने आ रही हैं। फिजाई आलूदगी से आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट में। अस्पताल की इमरजेंसी में 1680 मरीज आए। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में 1345, जबकि गंगाराम अस्पताल में 1265 मरीज रिपोर्ट हुए। सैकड़ों मरीजों ने सर्विसेज और जनरल अस्पताल का भी रुख किया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर ना जाएं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कुव्वते मुदाफत बढ़ाने के लिए अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवा इस्तेमाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं स्मोक से बचाव के इकदाम जारी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। अक्टूबर में 1780 धुआं छोड़ती गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई। महकमा ट्रांसपोर्ट की टीमों ने अक्टूबर में 80,000 से ज्यादा गाड़ियों का मुआयना किया। धुआं छोड़ने वाली 5,000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। ओवरलोडिंग पर 3,157 गाड़ियों के चालान हुए, जबकि रूट परमिट के बगैर चलने वाली 2,800 गाड़ियों के भी चालान किए गए। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है स्मोक और धुआं छोड़ती गाड़ियों हमारे माहौल के लिए नासूर हैं। मुतल्लिका अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी रखी है कि माहौल को खराब करने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। और अब आपको बताएं मुजाहिद स्क्वाड की गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुजाहिद स्क्वाड ने माह अक्टूबर में 120 अस्टारियों और 62 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। ई पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिए 1,90,604 से ज्यादा अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। 6,724 गाड़ियों और 8,884 मोटरसाइकिलों की चेकिंग की गई। 4 नाजायज पिस्तौल, राइफलें और दर्जनों गोलियां भी बरामद की गई। आपको अपडेट किया जा रहा है मुजाहिद स्क्वाड की गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुजाहिद स्क्वाड ने माह अक्टूबर में 120 इश्तिहारियों और 62 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। ई पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिए 1,90,604 से ज्यादा अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। 6,724 गाड़ियों और 4,884 मोटरसाइकिलों की चेकिंग भी की गई। 4 नाजायज पिस्तौल, राइफलें और दर्जनों गोलियां भी बरामद की गई। मुजाहिद स्क्वाड की गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई।